are going to learn the parts also. So this part is the topmost part of the ukulele. Okay, this part is called head of ukulele. This is the head. In the head, we have 4 keys. Okay, see here, we have 4. This thing is called keys. And which keys? Tuning pegs. We can call them tuning pegs or tuning keys. Okay, we have 4 keys here attached with head. देखो यहाँ पे head में attached. Okay. Now, after that, we have this long part. Yes, right? Anyone कोई बताएगा इस long part को हम क्या बोलते हैं? Neck. Okay, neck बोलते हैं. और क्या बोलते हैं? Fret. हाँ, fretboard. Very good, Pratiksha. Fretboard. We call this part as fretboard. Why? Because yes, Disha, fretboard. Good. So fretboard. Why? Because you can see there are so many rectangular boxes we have here. So this rectangular boxes are called frets. Okay. This rectangular boxes are called frets, and these frets are placed in a board-like thing here. देखो ये board जैसी चीज है ना. So that's why we call this part as fretboard. Okay. So अब फ्रेट बोर्ड में आप देखोगे यहाँ पे कुछ फिक्स्ड वायर्स होते हैं जो मेटल के होते हैं या फिक्स्ड वायर है. इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं फ्रेट वायर. दिस फिक्स्ड मेटल वायर्स आर कॉल्ड फ्रेट वायर्स. No, I'm not talking about this strings. I'm just talking about this vertical fixed wires. This okay, and between 2 fret wires we have 1 fret. Okay, so every fret has a name. Every fret has a name. Like we first box is called first fret, then second fret, then third fret. We can count and name that. It's very easy. Okay. After that we have this big hollow part here. Okay, big तो नहीं है, छोटा है, मगर अगर उकेलेले से हम कंपेयर करें तो उकेलेले के हिसाब से बड़ा है. So this is the hollow part here. This big hollow part. We call this big hollow part as body of the ukulele. This is body of the ukulele. In the body we have one cutout here. See. This cutout is called sound hole. This is the sound hole. Very good, Disha. This is the sound hole. And this, we have one part here. This part is called bridge. Bridge क्यों बोलते हैं? देखो, strings इनके ऊपर से आई हुई है. और हम भी अब ऊपर से जब चाहते हैं तो हम उसे bridge बोलते हैं. That's why we call this part as bridge. ये bridge है. अब हमारे पास total 4 strings होती है, right? 1, 2, 3, 4. 4 strings होती है. Yes, just like guitar we call this part as bridge. So हमारे पास कितनी strings होती है? 4 strings होती है. Total 4 strings होती है. कोई नाम बताएगा लाइन से? फर्स्ट स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं, सेकंड स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं? चारों स्ट्रिंग का नाम कोई बता सकता है मुझे? ओके, ABCD नहीं. GCEA. ओके ओके, ठीक है प्रतीक्षा, लेकिन हम इसको उल्टा बोलेंगे, AEGC बोलेंगे. अब मैं बताता हूं. हम अभी मैं होल्डिंग पोजीशन भी डिस्कस करूंगा, बिकॉज होल्डिंग पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी होल्डिंग पोजीशन सही नहीं है तो आपका उकेलेले अच्छा साउंड नहीं करेगा. सो सबसे पहले हम उकेलेले को ऐसे पकड़ते हैं, मान लो. सो वी काउंट फ्रॉम द बॉटम साइड ऑलवेज. Okay, so this bottom first string is, the name of the bottom first string is A. This is A. After that, the second one is E, third one is C, and the last one, the fourth one is G. Okay, any doubts? We always count from the bottom side. The bottom first string is called what? First string, and the name of the first string is A, then second is E, third is G, third is C, sorry, third is C, and fourth is G. Okay. Okay, next thing, the holding position. The holding position is very important. How many chords are there? Okay, we will discuss about it. Okay, so the holding position is very important. Why? Because अगर हमने होल्ड ही अच्छे से नहीं किया हुआ है तो हम बजा कैसे अच्छे से पाएंगे, राइट? सो होल्डिंग पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब अगर आपकी सारी टेक्निक्स सही है, होल्डिंग पोजीशन, हैंड पोजीशन, फिंगर पोजीशन, पिकिंग हैंड पोजीशन, तब आपका उकेलेले जो है वो साउंड भी अच्छा करेगा एंड वो बैलेंस्ड भी रहेगा. तो सिंपली यू हैव टू पुट दिस पार्ट
of your ukulele on your right leg's thigh. राइट लेग के थाई में आपको यहाँ प्लेस करना है योर उकेलेले. आपका उकेलेले बॉडी से मतलब स्टमक से पूरा टच रहेगा, चिपका हुआ रहेगा. ओके, देन योर उकेलेले, अभी देखो मेरा शोल्डर को ये क्रॉस कर रहा है, देखो है ना. तो हमारा जो बोलना चाहिए 45 डिग्रीज अप्रॉक्स रहना चाहिए, मगर अगर आप एक पोजीशन में बैठे हो, आपका बैक स्ट्रेट रहेगा. सबसे पहली बात तो बैक स्ट्रेट रहेगा. स्ट्रेट रहने का मतलब ये नहीं कि आप एकदम ऐसे टाइट होके बैठ जाओगे या ऐसे लूज होके बैठोगे. बैक आपका स्ट्रेट रहेगा, आप नॉर्मल पोजीशन में बैठोगे. बैक में किसी चीज का सपोर्ट नहीं लोगे. जैसे मैं चेयर में यहाँ बैठा हुआ हूँ तो मैं ऐसे टिक के नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं सपोर्ट नहीं ले रहा हूँ, मेरा बैक स्ट्रेट है. सेकेंड थिंग, मेरा जो उकेलेले का ये वाला जो पार्ट है उसे मैंने रखा हुआ है अपने राइट लेग के थाई में. मैंने मेंटेन किया हुआ है अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्रीज का एंगल, या फिर ये देखो ये मेरे शोल्डर को क्रॉस कर रहा है. ओके, सो ये ऐसा रहेगा, ना कि हम ऐसा रखेंगे ना कि हम ऐसा रखेंगे. ओके, जब ऐसा, ये दोनों पोजीशन गलत है. ये एक पोजीशन गलत है, ये एक पोजीशन गलत है. या आप बीच में रख के बजा रहे हो दोनों लेग्स के, वो भी गलत है. लेफ्ट में लेके नहीं बजाना है आपको, राइट लेग के थाई में यहाँ पे रखना है. ओके, नाउ गिटार का हेड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड रहता है. ओके, सो जिनके पास अभी उकेलेले, प्लीज आप ट्राई करिए मेरे साथ होल्ड करने का. ओके, सो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी. सेकेंड थिंग, अब मैंने ऐसा पकड़ लिया, मैंने हैंड पोजीशन तो नहीं बताई. यू हैव टू प्लेस योर राइट हैंड हियर. यहाँ पे रखना है राइट हैंड. कैसे? ओके, या आई कैन गाइड यू हाउ टू ट्यून. इसके बाद हम ट्यूनिंग की बात करेंगे. प्लेइंग के पहले तो हम ट्यूनिंग की बात करेंगे. सो मेरा जो ये पाम है, मेरी ये जो 5 फिंगर्स है, ये 5 फिंगर्स अप्रोच कर रही है स्ट्रिंग्स को. कहाँ पे अप्रोच कर रही है? साउंड होल के पास. दिस कट आउट इज कॉल्ड साउंड होल. व्हाई दिस कट आउट इज कॉल्ड साउंड होल? बिकॉज वी गेट साउंड फ्रॉम हियर. ओके, सो एक मेरी फिंगर्स कहाँ पे है? देखो, साउंड होल के पास. अगर ये साउंड, यस, तो साउंड होल के पास आ रही है, तो मेरा ये जो पार्ट है, देखो ये रिस्ट के आसपास का पार्ट, ये यहाँ पे टच हो रहा है. अब देखो ये कितना बैलेंस्ड है. अगर मैं ऐसे रखा हुआ हूँ पूरा चिपका के और गिटार को सॉरी उकेलेले को कुछ नहीं किया हूँ, सिंपल, तो ये बैलेंस्ड है. अगर मैं हिल भी रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मेरा उकेलेले गिर नहीं रहा है. सो यू हैव टू मेंटेन बैलेंस. अगर आपके उकेलेले में आपका बैलेंस ही नहीं है, सो वो बार बार आपको देख के बजाना पड़ेगा. आपने देखा होगा कई सारे लोग देख के बजाते हैं और कई सारे लोग बिना देखे भी बजाते हैं, राइट. सो जिनका उकेलेले में बैलेंस आ जाता है उन्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ती. क्यों? अगर बैलेंस आ गया तो हमारा उकेलेले हिलेगा नहीं. तो हमें पता है कि फ्रेट 1 कहाँ है, स्ट्रिंग 2 कहाँ है, फ्रेट 3 कहाँ है, या स्ट्रिंग 4 कहाँ है. ये हमें हमारे माइंड में याद हो जाता है. अगर आपका उकेलेले प्लेइंग के समय बार बार हिल रहा है, तो आप कैसे ही याद रखोगे? आप बार बार देखोगे कि स्ट्रिंग 2 कहाँ है, स्ट्रिंग 3 कहाँ है. ओके, सो यू हैव टू मेंटेन योर बैलेंस. लाइक अगर आप ड्राइव करते होगे, राइट, बाइक्स ड्राइव करते होगे, आप मोपेड्स ड्राइव करते होगे, तो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना. बैलेंस पहले इंपॉर्टेंट है, बाद में हम एक्सीलेटर देते हैं, बाद में स्पीड की ओर जाते हैं. अगर बैलेंस ही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है. आप कितना भी स्पीड चला लेते होगे और अनबैलेंस हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप गिरोगे, राइट.